Very good afternoon. Very good afternoon to you all. Very good afternoon. In this session, we will discuss the topic related to the fundamental forces of the universe. Actually, in this video, we will start the unit 2, and the first topic of unit 2 is the fundamental forces of universe. Okay. Now, we we are very obvious. We are very obvious the term fundamental forces of the unit. Now, see, actually, what happens? The fundamental forces uh, is related to the force exerted in the universe, and in the universe there we have the various type of forces. Like next slide we can see, as here you can see there are the four fundamental forces. Before to discuss these forces, I would like to tell you about the definition of the forces. Actually, what is the force? By applying force, you can change the state of the body, or you are trying to change the state of the body by push action or pull action on the body. Suppose that if you are applying some forces on the body, it means the position of that body will get changed, or this may also that the position will not change after applying the forces. Now see, actually what happens when the force is exerted on anybody, then there we have some following type of forces. First one is strong nuclear, second one is electromagnetic, third one weaker nuclear, and the last one is gravitational. Now see, strong nuclear, it means a force is exerted by the nuclear action, and that is of the nature of strong magnitude. Okay, जब एक strong force develop होता है with the help of nuclear action, वो कौन सा force होता है? Strong nuclear force. Now, second one is the electromagnetic. It means with the help of an electric field as well as magnetic field, a force is generated, and that force is known as electromagnetic force. And with the help of Faraday's law, you can signify this term. Weaker nuclear, weak nuclear, it means uh, after the action of nuclear action, then a force is developed of weaker category, and that force is weak nuclear force. And last one is the gravitational. Under the gravity, this type of force takes place. That force is known as the gravitational force. Now, here you can see the force goes from strongest to weakest. Okay. Now, this is very obvious. Some forces starting में क्या होता है, force strongest होता है, फिर वो weakest होता है. Suppose that एक force है उसका बार बार use करते रहिए तो क्या होगा, वो weakest हो जाएगा. ठीक. Now here I would like to tell you about the strong nuclear force. What is the strong nuclear force? Holds the nuclei of atoms together. जब atoms के nuclei जो होते हैं वो एक दूसरे को आपस में बांधे रहते हैं, और जिस फोर्स के हेल्प से बांधे रहते हैं उसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियर फोर्स.
और जब उसकी जो बॉन्डिंग स्ट्रेंथ होती है, फोर्स की स्ट्रेंथ होती है, बाइंडिंग स्ट्रेंथ, वो अगर बहुत ज़्यादा है तो वो जो न्यूक्लियर फोर्स होगा वो बहुत स्ट्रांग होगा. Second point you can see here, very strong but only over very short distance within the nucleus of the atoms. This is very obvious when the strong force is exerted inside the nucleus, then the nucleons will occupy a very lesser space because the strongest force is exerted in between the atoms inside the nucleus. Next, in this slide says about the electromagnetic force. Now, if we break this term in the form of electro as well as magnetic, the first one is related to the electricity and second one is known as is related to the magnetic field. It means firstly we will talk about the causes behind the electric current, electric effect as well as magnetic effect. Electric effect और magnetic effect क्यों होते हैं, उसके उसके रीजन क्या होते हैं वो देखते हैं. This is a very obvious case. Already you heard that. जब क्या होता है भाई, जब चार्ज जो है सेम नेचर का होता है, ठीक? जब चार्ज क्या है सेम नेचर का होता है, when the same charges in universe, suppose that the like charges are held together. It means either both charges are positive or both charges are negative. Then what happens? This is very obvious topic, because when the charges are same, then the force of repulsion takes place and they will act each other by the force of repulsion. क्या होगा, एक दूसरे से चार्ज क्या होंगे, दूर होंगे. ऑपोजिट चार्ज, जब ऑपोजिट चार्ज होते हैं तो क्या होता है भाई, चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. इट मीन्स ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. इंटरैक्शंस बिटवीन मैग्नेट्स, मैग्नेट का इफेक्ट क्या होता है, दोनों के मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ, तो क्या होता है, पोल्स में इंटरेक्शन होता है. नाउ सेकेंड पॉइंट is weaker than the strong nuclear force. Actually, this force is weaker in comparison to strong nuclear force. Acts over a much longer distance than that the stronger nuclear force. क्या होता है, strong nuclear force जो होता है शॉर्ट रेंज के लिए होता है, ठीक है, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, लार्जर डिस्टेंस के लिए होता है. नाउ इन दिस स्लाइड we will discuss about the weak nuclear force. ध्यान से देखना, because the fundamental forces in the universe is in your in your unit 2, and this is the topic of unit 2. It means the fundamental forces in the universe is the first topic of unit 2. Now you will have to keep these forces in your mind. Now this slide tells about the weak nuclear force. This weak nuclear force is actually responsible for the nuclear decay. ठीक, फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या है, न्यूक्लियर डिके के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. एनी न्यूक्लियर destruction takes place inside the nuclear field, then the region will be behind that, and that the region is weak nuclear force. Means weak nuclear force is responsible for the nuclear decay. Now, the second point is weak and has a very short distance range. क्या होता है भाई, न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, वीक होता है और बहुत शॉर्ट डिस्टेंस रेंज के लिए होता है. नाउ दिस स्लाइड्स रिप्रेजेंट्स टू द ग्रेविटेशनल फोर्स. बहुत आपको अच्छे से पता होगा कि अर्थ है, अर्थ में एक क्या है, एक नेचुरल मैग्नेट मारा जाता है कि अंदर नेचुरल मैग्नेट है, ठीक है, और वो क्या होती है, सारे ऑब्जेक्ट्स को, सारी चीज़ों को अपनी क्या करती है, अट्रैक्ट करती है. ठीक, वो सारी चीज़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट करती होगी तो कोई ना कोई फोर्स होता होगा. ठीक,
तो क्या होता है जब कोई ऑब्जेक्ट टुवर्ड द अर्थ अट्रैक्ट होता है तो उसके ऊपर एक ग्रेविटी काम करती है, और एक ग्रेविटी क्या होती है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, स्मॉल जी। ठीक। और अगर कोई बॉस कोई मास कोई ऑब्जेक्ट का मास स्मॉल m किलोग्राम है, तो फोर्स जो होता है mg जो होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ठीक। नाउ द फर्स्ट पॉइंट सेज अबाउट द ग्रेविटेशनल फोर्स, the weakest of all fundamental forces but acts over very long distance। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, weakest of all fundamental forces, these are forces are the weakest of all fundamental forces but acts over very long distance। एक इसका जो सबसे खास बात है, ये हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है। ग्रेविटेशनल फोर्सेज आर ऑलवेज इन अट्रैक्टिव नेचर। ओके। नाउ ये इसका ये कैसे लगता है, किस तरीके से, एक्चुअली दीज फोर्सेज एक्टेड इन बिटवीन एनी टू पीसेस ऑफ द मैटर इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स में कोई भी दो पीस है, उसके बीच में जो फोर्स लग रहा है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, वो फोर्स क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर कोई ऑब्जेक्ट m1 m2 है, उसके बीच में डिस्टेंस क्या है, r है, तो m1 m2 अपन r स्क्वायर जो होगा इनटू कैपिटल G क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक। And last point says that this is very important in explaining the structure of the universe. Suppose that if you have any project to explain the structure of universe at a very smart level, then definitely there will be the term gravitational force, because on the behalf of gravitational force you will explain the structure of universe. Remember, then what the points should be in your mind, and this should be these points should be remembered. First point is the weak nuclear force is not the weakest of the fundamental forces. Weak nuclear force is not the weakest forces in the fundamental category. While weakest force is gravity. Gravity is the weakest force, but most important in understanding how objects in the universe interact. Now, see. Now, after the discussion of nuclear forces, gravitational forces, as well as electromagnetic forces, I would like to tell you about the nuclear reactions. What are the nuclear reactions? Now, see, there are the two types of nuclear reactions. First one is the fusion, second one is the fission। ठीक। एक में क्या होगा, मॉलिक्यूल्स एसोसिएट हो जाएगा, एक में मॉलिक्यूल्स क्या होगा, डिकम्पोज हो जाएगा। फिजन में मॉलिक्यूल्स डिकम्पोज हो जाता है, फ्यूजन में मॉलिक्यूल्स छोड़ जाते हैं। नाउ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर द two most important subatomic particles in the nucleus and participate in these reactions. You all are very familiar with the topic neutrons and protons. You know, एक सेल होता है, इसमें सब सेल होता है, फिर सब सेल में क्या होता है, ऑर्बिट्स होता है, ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक। ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स किसके चारों ओर मूव करता है, न्यूक्लियस के चारों ओर साइक्लिक पाथ पे मूव करता है, और उस पर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है, इसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फोर्स। तो इनसाइड द न्यूक्लियस क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक। देयरफॉर दीज टू subatomic particles, that is protons and neutrons, are the responsible for these reactions. Now, firstly, I would like to tell you about the fusion. What is the literal meaning of fusion? The fusion is the process of combining nuclei of atoms to make different atoms. It means in the case of fusion,
The nuclei of atoms will be combined to each other to produce different atoms. It means अगर नए atoms बनाने हैं तो in the case of fusion कुछ atoms आपस में combine होंगे, ठीक, और वो combine होंगे फिर output में एक नया atom बनाएंगे, ठीक. Fusion is the process of combining nuclei of atoms to make different atoms. Second point, this reaction is going from small to large particles. Actually, when the atoms will combine in each other, then after combining of metals, we will get the large size of atom. Think of fusing two things together. जब सोचो कि दो फ्यूजिंग है, दो दो एटम्स आपस में फ्यूज हो रहा है, तो फिर एक नया एटम्स पड़ेगा, तो उसकी साइज ऑब्वियसली बड़ी होगी, ठीक. Obviously, the nuclear fusion happens at the sun. This process takes place on the sun. In the case of sun, the nuclear fusion takes place. One atom of hydrogen, three and one atom of hydrogen combine to form a helium atom. Neutron and lots of energy. Now, यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे क्या न्यूट्रॉन्स, दो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, हाइड्रोजन, थ्री हाइड्रोजन एटम्स, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन. अब ये जब आपस में कंबाइंड हो रहे हैं तो फिर हमको क्या यहाँ पे मिल रहा है, ये आपस में कंबाइंड होंगे, हमको एक हीलियम एटम्स मिल रहा है और ये न्यूट्रॉन और है प्रोडक्ट में एडिशनल, और फिर ये इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है. तो यहाँ जो एनर्जी रिलीज हो रही है इसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी, और ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एनर्जी होती है. तो क्या हुआ, यहाँ से जब कंबाइंड हुआ तो यहाँ साइज क्या हुआ, बढ़ गया एटम्स का. फ्यूजन, व्हाट डज द एनर्जी कम्स फ्रॉम, वेयर डज द एनर्जी कम्स फ्रॉम, एनर्जी कहाँ से आती है. एनर्जी इज गेन्ड व्हेन द टू हाइड्रोजन एटम्स ब्रेक अपार्ट. Mass is converted to energy. How? This may be seen on the behalf of Einstein equation E equal to mc square. Now, in this slide, you can see the literal meaning of fission. Fission is the process of breaking of the nucleus of an atom. अब यहाँ पे क्या होगा, फिजन में क्या होता है, दो एटम्स क्या होता है, ब्रेक होते हैं. मीन्स लास्ट में हमको स्मॉलर पार्टिकल मिलेगा, ठीक. Fission is the process of breaking of the nucleus of an atom. This reaction is going from large to small particles. Nuclear fission happens on Earth. Okay. न्यूक्लियर फ्यूजन जो है वो कहाँ हो रहा था, सन पे, और न्यूक्लियर फिजन का हो रहा है अर्थ पे होता है. इसमें क्या होते हैं, दो सब जो पार्टिकल्स होते हैं एटम्स, वो क्या होते हैं आपस में अलग अलग हो जाते हैं, ठीक. न्यूक्लियर फ्यूजन बिगिंस व्हेन अ न्यूट्रॉन हिट्स द न्यूक्लियस ऑफ लार्ज एटम्स. क्या होता है, न्यूट्रॉन का इस पे इम्पैक्ट पड़ता है लार्ज एटम्स पे, उसके बाद क्या होता है, वो डीएसोसिएट हो जाते हैं, टूट जाते हैं, ठीक. Adding these neutrons makes the nucleus unstable and it splits into smaller nuclei. जब हम न्यूट्रॉन्स ऐड करते हैं तो क्या होता है, ये अनस्टेबल हो जाता है न्यूक्लियस, तो ये क्या होता है, दो पार्टों में स्प्लिट हो जाता है, ठीक. Here, for the fission process, you are very familiar with the term uranium. Okay, uranium 235. Now, uranium 235. These atoms will come in the contact of neutrons. And the neutrons will attract on the uranium. Then then the nucleus of uranium will be unstable, and further it will be converted into some subparts. And during this reaction, which type of energy takes place? That energy is known as nuclear fission energy. Now,
The reaction related to chain reactions, you can see if there are other uranium-235 atoms nearby, the neutrons that come from splitting the first and they can hit other atoms. Nucleus of these other atoms will release more neutrons and split more U-35. क्या होता है, ये एक चेन में कंटिन्यू रहता है ये रिएक्शन, तो इसको क्या कहते हैं, चेन रिएक्शन कहते हैं। ठीक, चेन रिएक्शन, chain fission reaction, nuclear fission chain reaction. These are responsible. First is the uranium-235 neutron, and finally you will get the fission product. And some other terms related to the radioactivity. Radioactivity is a process where the nucleus emits particles of energy. इसमें क्या होता है, अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके, इस तरीके से होता है। रेडियो एक्टिविटी में ये सारे डीकेज होते हैं। ठीक, तो रेडियो एक्टिविटी क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें न्यूक्लियस एमिट करता है पार्टिकल्स या एनर्जी को। द न्यूक्लियस एमिट्स पार्टिकल्स और एनर्जी। ड्यूरिंग द अल्फा डीके क्या होता है, थोड़ा देख लेते हैं भाई, 2 मिनट और है, इस पर फिर कुछ स्लाइड्स होंगी मुश्किल से, रिवाइज कर लो, ये पहले से पढ़े हुए। तो अल्फा डीके में क्या होता है, अ पार्टिकल विद 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स इज रिलीज्ड फ्रॉम एन अनस्टेबल न्यूक्लियस। एक अनस्टेबल न्यूक्लियस से एक पार्टिकल 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन्स का रिलीज होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, अल्फा डीके। अल्फा डीके का पार्टिकल्स कहते हैं। अल्फा डीके कैन बी स्टॉप्ड बाय क्लोजिंग स्किन अ फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ एयर। बीटा डीके में क्या होता है, द इलेक्ट्रॉन इज एमिटेड occurs when a neutrons in the nucleus of radioactive isotope splits into proton as well as electron. In the case of gamma decay, this involves a release of high energy. The electromagnetic radiation takes place. Here you can see the pictorial representation of alpha decay, beta decay as well as gamma decay. And this is the half-life related to the radioactivity. This is the time column, 0 years, 1000, 2 years, 3000 years, and corresponding to the time, the fraction of element left, amount left, half-life are given in this table. For the 0 year, the fraction of element left 1, amount left 80, half-life is 0. Why you can see for the 3000 years, the fraction of element left is 1/8, amount left is 10. हाफ लाइफ इज 3। हाफ लाइफ का थोड़ा सा मतलब समझा देते हैं, 2-3 स्लाइड और होगी, तो थोड़ा सा देख लो। बाकी जो चीज़ें हैं, जिस तरीके से क्वेश्चन आता है, फिर उस तरीके से अपन क्वेश्चन करेंगे। हमको बताना था न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हाफ लाइफ के बारे में बता देते हैं। द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज द टाइम इट टेक द हाफ ऑफ द रेडियो एक्टिव एटम्स टू डीके टू स्टेबल वंस। क्या होता है भाई, रेडियो एक्टिव एटम्स अपने से आधा जो है वो अपने आप को खत्म कर लेता है, अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए। वो क्या होता है, टाइम, हाफ टाइम होता है। ठीक, हाफ लाइफ। If there are 80 grams of radioactive elements that has a half life of 1000 years, after 1000 years क्या होगा, 40 ग्राम ऑफ एलिमेंट केवल बचेगा, क्योंकि 40 ग्राम ने अपने आप को स्टेबल करने में खत्म कर लिया। तो हाफ लाइफ क्या हो जाएगा इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट का, दैट इज 80 ये 1000 years. All the prediction related to the half life, especially this lecture was subjected toward the fundamental forces inside the universe. तो आपको क्या बताया, फोर्सेस, न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। इसमें सबसे वीकर जो फोर्स होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। सीजीआई वगैरह में क्वेश्चन में पूछा जाता है सबसे वीकर फोर्स ग्रेविटेशनल, लेकिन ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है वो लार्जर स्केल, लार्जर रेंज के लिए होता है। ठीक, और न्यूक्लियर फोर्स सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट माना जाता है, उसमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो है न्यूक्लियर फिजन फोर्स माना जाता है, सॉरी न्यूक्लियर फ्यूजन फोर्स। इसका एग्जांपल है हाइड्रोजन बम।
और बेसिकली न्यूक्लियर फ्यूजन वाला जो प्रोसेस होता है कहाँ पे होता है, सन पे होता है। उसके बाद हम आपको थोड़ा सा रेडियो एक्टिविटी के बारे में बताया। अब रेडियो एक्टिविटी के केस में क्या होता है, रेडियो एक्टिविटी के केस में क्या होता है, जो यूरेनियम वगैरह हम एक एलिमेंट ले लेते हैं, यूरेनियम 235, उस पर न्यूट्रॉन्स अटैक करता है, तो उससे क्या होता है, यूरेनियम 235 का क्या होता है, न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाता है, जिससे वो आगे फर्दर ब्रेक हो जाता है। उसके रेडियो एक्टिविटी केस में हम बताएं कि भाई जो सब्सटेंस होते हैं उसके हाफ टाइम होती है, हाफ लाइफ। हाफ लाइफ क्या होता है, हाफ लाइफ क्या होता है, कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए वो हाफ क्वांटिटी उसमें डीके कर देता है। तो हाफ क्वांटिटी जब डीके हो जाती है, जब जितने समय पे, उसको क्या कहते हैं, हाफ लाइफ। ओके, तो नाउ आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ यू that this topic, the fundamental forces in universe, is very important in future also, and because we we are moving, we are joining the unit 2, and before to start the unit 2, the basic concepts I think related to the for fundamental forces in the universe uh, should be covered, and I think this video will be very beneficial for you. Otherwise, if the any query arising in your mind, then you can put in the comment box. And यहाँ पे हम बताते हैं, यहाँ पे भी कई सारी चीज़ें हैं। मान लो क्वेश्चन दिया हुआ, इफ़ यू स्टार्टेड विद 100 ग्राम, हाउ मेनी ग्राम्स आर लेफ्ट आफ्टर 5 सेकेंड। तो क्या होता है, सिंस 2 हाफ लाइफ्स अगर the 100 gram must be divided by 2, it means 25 gram। सारे कोई कई सारे क्वेश्चन होते हैं, लेकिन हमको यहाँ पे क्वेश्चन नहीं देखने हैं, ठीक है। ओके, तो थैंक्स टू ऑल। जो कुछ इसके आगे का, जैसे मान लीजिए क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में बताएंगे इन द रेलिवेंट लेक्चर्स इन न्यूक्लियर फोर्सेस, because your unit 2 is related to the nuclear energy, and all the topic would be subjected toward the nuclear energy। Okay. तो ये यूनिवर्सल फोर्स में न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में पढ़ लिया, और ये पूरा जो यूनिट है वो न्यूक्लियर एनर्जी के से रिलेटेड है, ठीक है। तो आगे जो भी टॉपिक कवर होगा उसमें क्या चीज़ें, किस चीज़ के बारे में बातें करेंगे, न्यूक्लियर फोर्सेज, न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में बात करेंगे। और आपको हम बता चुके हैं कि न्यूक्लियर फोर्सेज या न्यूक्लियर एनर्जी होता क्या है, अच्छे से पता चल गया कि इसमें न्यूक्लियस जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं। न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, तो उसमें न्यूट्रॉन्स का अटैक होता है, न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है, वो ब्रेक करते हैं, तो वो क्या हो जाता है, न्यूक्लियर फिजन हो जाता है। तो जब वो कंबाइंड हो जाते हैं तो क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन हो जाता है। एक रिएक्शन हम बताया कि सन पे होता है, उसका एग्जांपल हाइड्रोजन बम है। एक जो न्यूक्लियर फिजन वाला एग्जांपल है वो अर्थ पे होता है, उसका एग्जांपल क्या है, एटम बम। एंड स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स न्यूक्लियर फोर्स होता है। वीकेस्ट फोर्स क्या होता है, द वीकेस्ट फोर्स इज व्हाट, द वीकेस्ट फोर्स इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा किस नेचर का होता है, अट्रैक्टिव नेचर का होता है। ऑलवेज ग्रेविटेशनल फोर्स आर इन नेचर ऑफ अट्रैक्टिव, और हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक। ये क्या होता है, लार्ज रेंज के लिए फिजिबल होता है, जबकि न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, स्मॉलर रेंज के लिए फिजिबल होता है। आई थिंक the three basic forces, the three basic fundamental forces were discussed in this lecture. First one is nuclear force, gravitational force, electromagnetic force। मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स टू वीकेस्ट फोर्स, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक। और इसके बाद हम रेडियो एक्टिविटी में आपको बताया क्या चीज़, एक चेन रिएक्शन होता है, क्योंकि वो रिएक्शन बार बार उसी तरीके से आगे बढ़ता है। वो रिएक्शन कौन सा हो जाता है, चेन रिएक्शन। अब फर्दर हम आपको बताएंगे क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में, रिलेवेंट टू द न्यूक्लियर फोर्सेज। क्वांटम मैकेनिक्स ऑलरेडी हम एक बार डिस्कस कर चुके हैं कि जब क्लासिकल फिजिक्स था, तो क्लासिकल फिजिक्स को वाले क्लासिकल फिजिक्स में लिमिटेशंस थी जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर फिजिबल नहीं थी, और कई सारी क्लासिकल फिजिक्स की चीज़ें हैं जो ऑन द बिहाफ ऑफ क्वांटम फिजिक्स वो प्रूव हुई, ठीक है। तो क्वांटम फिजिक्स जो भी है क्वांटम मैकेनिक्स, वो हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में
डिस्कस करेंगे. ओके, थैंक यू, थैंक्स टू